Hello everyone. Welcome to Englidium and thanks for joining me. Today we will read the poem Why I Like the Hospital by Tony Hoagland. So जैसे मैंने बोला था कि कोई भी पोएम शुरू करने से पहले पोएट जो है उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है. तो Tony Hoagland, actually his name was Anthony J. Hoagland, was a renowned modern American poet. His father was an army doctor. So Hoagland grew up on various military bases in Hawaii, Alabama, Ethiopia and Texas. Okay, so ये जो poem है Why I Like the Hospital, you can understand, you can realize from the title of the poem, भाई hospital जाना कौन पसंद करता है? कोई नहीं, ये तो कोई tourist spot नहीं है. लेकिन फिर भी Why has the poet named the poem as Why I Like the Hospital? चलो थोड़ा जान लेते हैं. Because पहले ये जो फर्स्ट लाइन है, because it is all right to be in a bad mood there. ओके, हॉस्पिटल जब हम जाते हैं ना तो कोई खुशी खुशी नहीं जाते हैं. We all go to a hospital when we are in any kind of trouble. Mainly we are suffering from any disease, or some people who are very close to us, they are suffering from any disease. तब हम जाते हैं हॉस्पिटल. Because it is all right to be in a bad mood there. ये जो because से देखो, ये पोएम जो है because से शुरू होती है. Okay, in a very abrupt way. Slouching along through the underground garage. Slouching का मतलब थोड़ा ऐसे कंधे ऐसे झुक के हम जाते हैं कहां से? Through the underground garage. यहाँ पे जो underground garage है वहां से हम जाते हैं. underground garage, it symbolizes darkness, right? तो हम जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमें लगता है कि भाई ये जाने का कोई जगह तो नहीं है. Riding wordlessly on the elevator with the other customers. और हम क्या करते हैं, हम वो जो एलिवेटर जो है लिफ्ट से हम ऊपर चढ़ते हैं और with the other customers. यहाँ पे जो customers वर्ड है उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो लोग पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्स और स्टाफ लोग हैं. लेकिन यह कस्टमर्स वो जो वर्ड है कस्टमर्स, इसका इस्तेमाल पोएट ने क्यों किया? Because it's a fact, an emphatic fact of life that in nowadays the patients who visit the hospitals in need, when they are in any kind of ailment, they are suffering from any kind of ailment, they visit a hospital and they are treated like customers. है ना, ऐसा होता है ना कि भाई जितना पैसा है उतना ही तो अच्छा है. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं वहां से ये जो क्लिनिक है ना वहां से थोड़ा टेस्ट वगैरह जो है वो करवा के लाओ. और वो डॉक्टर जो है वो क्लिनिक का नाम भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर का कुछ फायदा भी है. लेकिन आई एम नॉट टेलिंग दैट ऑल द डॉक्टर्स आर लाइक दैट, बट इट्स रियली पेनफुल टू थिंक दैट यस, अ सेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स आर जस्ट लाइक दैट. Riding wordlessly on the elevator with the other customers, staring at the closed beige doors like a prison wall. ये जो prison जो है ना, कैद खाना जो है, हम जब जाते हैं तो ये जो hospital है, it's just like a prison. Okay, it is equivalent to a prison. और ये जो doors का जो color है is beige color. It means quite yellowish brown. Now come to the second stanza. I like the hospital for the way it grants permission for pathos. ये परमिशन फॉर पैथोस जो है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. परमिशन, इट स्टार्ट्स विद पी एंड पैथोस आल्सो. आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस. पोएट यहां पे क्या बोल रहे हैं? ही इज सेइंग दैट उसे हॉस्पिटल पसंद है बिकॉज इट गिव्स परमिशन फॉर पैथोस. क्योंकि यहां पे एक आदमी जो पेशेंट है उसका जो पैथोस का मतलब पैशंस, पैथोस मीन्स पैशंस, जो पैशंस है वो उसे बयां कर सकते हो. He can express his feelings. He can cry, he can smile, he can laugh. Okay, he can get angry with anyone. The mother with cancer deciding how to tell her kids. और एक औरत मम्मी जो कैंसर, ये जो एक टर्मिनल डिजीज है, she is suffering from cancer and she is really worried, she is extremely apprehensive. उनको ये लग रहा है कि भाई जब बच्चे लोग आएंगे तो हम कैसे बोलेंगे उन लोगों को कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सुनने के बाद उन लोगों का रिपरकशंस कैसा होगा, हाउ विल दे रिएक्ट. तो इसीलिए वो औरत भी थोड़ा डरी हुई है, शी इज वरीड. और ये जो स्टैंजा है ना, देखो थर्ड लाइन में क्या है? द बर्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शॉन्ट इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट. और एक लड़की है
she is bald, she lost her hair because maybe she is also suffering from breast cancer. That's why one of her breasts, it has been eliminated from her body, and that's why she is really depressed, she is unhappy, she lost her hair, she is thinking about her beauty, about her lost beauty, because it's at the same time it's natural when someone suffers from cancer, and if that person goes through chemotherapy, we all know that chemotherapy is very painful, बहुत बहुत दर्द होता है, ठीक है. और as a result of chemotherapy, as the outcome of chemotherapy, what happened, the girl, she lost her hair and she has become bald, and there is a shunt on just installed on her missing breast. Shunt का मतलब छोटा सा ट्यूब, जहां पे शायद मेडिकेशन इज गोइंग ऑन, मेडिसिन चल रहे, तो इसीलिए वो गर्ल जो है, लड़की जो है, शी इज वेरी अपसेट. और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है ना जहां पे जो हमारा जो पैशन, जो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है, जो पैशन है, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं. ओके, सो दिस स्टैंजा, इट इज नथिंग बट इट्स अ ओपन डिस्प्ले ऑफ इमोशन. देखो, एक मम्मी जो कैंसर से जूझ रही है, जो कैंसर से लड़ रही है, शी इज वरीड कि जो बच्चे लोग हैं उसको, उन लोगों को कैसे बोलेंगे कि भाई मुझे कैंसर है. और लड़की को देख लो, शी हैज लॉस्ट वन ऑफ हर ब्रेस्ट एंड इट हैज बीन ऑपरेटेड, शी इज डिप्रेस्ड, शी इज अपसेट. The crone in her pajamas walking with an ivy pole, and then crone का मतलब है old ugly woman. An ugly woman is also there. Listen, literally I don't know that whether she looks ugly or not, because ugly and beauty, they do not have any specific definitions. Beauty lies in the eyes of the beholders, same like the ugliness. But the fact is that here the lady is looking ugly because maybe she is carrying that intravenous pole with her, the ivy pole with her. That's what poet is saying. The crone in her pajamas walking with an ivy pole. Crone means ugly old lady, and she is walking, she is wearing a pajama, and she is walking with an ivy pole. And what is ivy pole? It is the intravenous pole. And what does it mean? It's a kind of pole to hang bags of medicine or fluid. जो आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, जो पेशेंट लोग जो लेटे हुए होते हैं बेड में, तो उसके पास में एक पोल जैसा होता है, और उसमें से जो ट्यूब है, जो बैग है, बैग में मेडिसिन भी रहता है और कभी कभी फ्लूइड भी रहता है वहां पे, तो इसको कहते हैं इंट्रावेनस पोल. आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक. अरे भाई, एंटीसेप्टिक जो है, एंटीबैक्टीरियल डिजीज जो है, मेडिसिन जो है, नो वन लाइक्स द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक, नो वन. बट व्हेनेवर वी विजिट अ हॉस्पिटल, गो टू अ हॉस्पिटल, वी कैन स्मेल. ये जो ये बदबू नहीं है, खुशबू भी नहीं है, लेकिन फिर भी वी डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक्स. और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट, और एयर कंडीशनिंग मशीन है वहां पे, एंड दे आर सेट ऑन हाई ऑल नाइट, ऑल थ्रू द नाइट. और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट. वहां पे एक वेस्ट बास्केट है जहां पे फ्रेश फ्लावर्स जो है, ताजे फूल जो है, ये ताजे फूल को वहां पे फेंका गया है. क्यों? बिकॉज द हॉस्पिटल्स डोंट नीड इट. मे बी some patients parties, when they come, they bring flowers with them. But on the other hand, maybe the hospital authority, they bring flower to decorate the tables or the chambers of the patients. फिर भी दूसरा दिन क्या होता है, वो जो फ्रेश फ्लावर फ्रेश रहता है, लेकिन फिर भी उसको फेंका जाता है डस्टबिन में. तो पोएट इज सेइंग दैट ये जो एयर कंडीशनिंग मशीन है, जो फुल स्पीड में चलता है पूरी रात, और उसके साथ साथ जो फ्रेश फ्लावर्स है, जो फ्रेश फ्लावर्स का अभी वो कहां पे है, वेस्ट बास्केट में है. एंड पोएट, ये जो फ्रेश फ्लावर्स एंड टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट, ये जो लाइन है ना, दिस इज नथिंग बट केयरलेसनेस एंड एंटीपैथी. कि भाई फ्रेश फ्लावर को कौन फेंकता है, लेकिन ये लोग फेंक देते हैं, क्योंकि ये केयरलेस है. केयरलेस मतलब यह पेशेंट्स लोग के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है, जो स्टाफ एंड नर्सेस लोग हैं. But I like the way some people on their plastic chairs break out a notebook and invent a complex coding system. बहुत सारे dislikings है वहां पे, लेकिन पोएट ये जो फोर्थ जो स्टैंजा है जहां पे पोएट बोल रहा है, but I like the way some people on their plastic chairs break out a notebook and invent a complex coding system to tally up their days on earth. लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि कुछ पेशेंट्स लोग प्लास्टिक चेयर में वो लोग बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ उनके हाथ में एक नोटबुक है, और वो नोटबुक में क्या लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि एंड इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिस्टम टू टैली अप देयर डेज ऑन अर्थ. और वो लोग
और कितने दिन रहेंगे। ओके, जिंदगी 2 पल की शायद उन लोगों के लिए। The column on the left that says times I acted like a fool, and on the notebook वो लोग क्या लिख रहे हैं, वो लोग लिख रहे हैं कि the column on the left that says times I acted like a fool, उस समय जब मैं एक फूल के तरह, मेरा जो बिहेवियर था वो एक बुद्धू के तरह था। I have done lots of foolish acts in my life. So on the left column on the notebook that man is writing, वो आदमी लिख रहा है कि भाई 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले मैंने ऐसा बुद्धू जैसा काम किया था। And facing the column on the right that says times I acted like a saint, और right column जो है वहां पे that says, वहां पे वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा मोमेंट्स भी था, ऐसा ऐसा पल भी था जहां he acted like a saint, जहां उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो। और ये जो स्टैंजा, ये भी पोएट ही इज सेइंग दैट ही लाइक, इट इज अबाउट द लाइकिंग्स। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग, द फोर्स्ड इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ वेटिंग। ये जो लॉन्ग प्रेरी ऑफ वेटिंग है ये एक मेटाफोर है। एंड प्रेरी क्या होता है? बड़ा घास का मैदान। Okay, and it's a fantastic line, the poet, the way he has expressed his feelings. I like the long prairie of the waiting, the forced intimacy of the self with the self. तब मैं देखता हूं कि ये घास का जो मैदान है ना, ये लोग जो है, जो पेशेंट्स लोग हैं हॉस्पिटल में, शायद वो लोग भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? The forced intimacy of the self with the self. यहाँ पे you are forced to have or to create an intimation with your own self. भाई कोई नहीं है देखने के लिए, कोई आ नहीं रहा है, तो क्या करे? थिंक अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस, द हॉस्पिटल, वेयर यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। क्योंकि जिंदगी में हम ये नहीं करते। देखो, अगर हम ऐसे ये बोले कि भाई जब हम कुछ काम करते हैं, जब हम ऐसे जिंदगी के दौर में हम रहते हैं, कितने बार हम खुद अपने बारे में सोचते हैं? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, है ना? तो रेस में लगे हुए रहते हैं हम, दौड़। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा मोमेंट, ऐसा वक्त भी निकलना चाहिए कि भाई आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछो कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो भी तुम बनना चाहते हो और बन रहे हो और बन गए हो, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम अपने आप से समय निकाल के कुछ समय बिताना चाहते हो? Each sick person standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest. देखो, ये जो स्टैंजा है ना, this is telling about the pain of alienation, the pain of you can say separation, isolation. क्योंकि एक पेड़ जैसा मैं खुद प्रेरी में, बड़ा घास का एक मैदान है, वहां बीचों बीच मैं खुद अकेला एक पेड़ जैसा मैं खड़ा हूं और मैं सोच रहा हूं कि भाई जंगल का क्या हुआ? क्योंकि एक दिन तो ऐसा था जब मेरा जो फीलिंग्स जो है, मेरा जो प्रेजेंस जो है वो जंगल में था। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच रहता था। आई हैड माई फैमिलीज, आई हैड माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई एसोसिएट्स। लेकिन आज हम बहुत अकेले हैं। ये जो अकेलापन जो है ना, this is something which is very painful and it makes people depressed, sad and make them feel alienated. इन लोगों को लगता है कि मैं बिछड़ गया हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं। Like a tree wondering what happened to the forest. जैसे एक पेड़, अगर एक पेड़ जो है वो अकेला है किसी मैदान के ऊपर, तो वो पेड़ भी सोच रहा है कि भाई जंगल में, जब मैं जंगल में था, अभी मैं तो यहां पे हूं क्योंकि मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है। ये आदमी के साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम बोलते हैं ना कि एक लाइन ऐसा है ना इंग्लिश में कि ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त काम में साथ देते हैं, अपने प्रॉब्लम में साथ देते हैं, अपने दुख के समय में साथ देते हैं, वो लोग सच्चे दोस्त हैं, सच्चे लोग हैं। लेकिन ये जो पेशेंट्स लोग अभी हॉस्पिटल्स में हैं, जस्ट थिंक अबाउट देम, दे आर फीलिंग वेरी लोनली because hardly anyone comes to have a visit, to give
a bunch of flowers or something to them to show their love towards the patients. And once I saw a man in a lime green dressing gown hunched over in a chair, a man who was not yelling at the doctors or pretending to be strong or making a murmured phone call to his wife. और फिर मैं देखा, and once I saw a man in a lime green dressing gown, जो हॉस्पिटल्स में lime green जो ड्रेसिंग गाउन है ब्लू होता है, फिर लाइट ग्रीन भी ये ड्रेसिंग गाउन भी है हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोगों के लिए. तो वही पोएट बोल रहे हैं कि हंस्ड आई सॉ अ मैन वेयरिंग अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन हंस्ड ओवर इन अ चेयर, जो एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं. अ मैन हु वाज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स, और वो चिल्ला नहीं रहे डॉक्टर लोगों के ऊपर. उसके अंदर में कोई ग्रीवेंस, कोई ग्राज नहीं है. ही हैज बिकम सो इंडिफरेंट, उदास, और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग. वो ऐसा प्रिटेंड भी नहीं कर रहा है, ऐसा वो दिखावा नहीं कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं अंदर से. और मेकिंग अ murmured phone call to his wife, और neither he is making a call to his wife and कुछ धीरे धीरे से वो अपने वाइफ को कुछ बोल रहा है, अपना फीलिंग्स जो है वो निकाल रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है. नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है. वो आदमी जो है वो बैठे हुए हैं on a plastic chair and he is not shouting at anyone, he is not showing any grudge to anyone, but one sobbing without shame. ये sobbing without shame जो है ये एक alliteration है. ओके, सॉबिंग एस से स्टार्ट होता है, शेम जो है ये भी एस से स्टार्ट होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. बट वन सॉबिंग विद शेम, पंपिंग इट ऑल आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ. और एक आदमी वो रो रहा है, एक पेशेंट वो रो रहा है, एंड व्हाट एवर ही इज हैविंग इनसाइड, उसके अंदर में जो है, जो फीलिंग्स है, जो पेन है, वो उसे निकाल रहा है. द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ हेल्पलेसनेस एंड रेज. बिल्ज का मतलब है वेस्टेज. The overflowing bilge of helplessness and rage. वो helpless है. And rage मतलब क्या होता है? Anger. A man no longer expecting to be saved because he is afflicted with some deadly disease. और ये जो पेशेंट है, ये आदमी जो है, इसको पता है कि शायद वो और कुछ दिनों के वो मेहमान है, शायद कुछ दिन बाद वो मर जाएंगे. तो इसीलिए he is just crying, he's sobbing his heart out and he is showing his helplessness and rage at the same time. देखो, एक पेशेंट जो है वो चुप है, उसके अंदर में कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है, वो धीरे धीरे किसी के ऊपर उसका कोई ग्रीवेंस, कोई ग्राज नहीं है. और दूसरा जो है वो रो रहा है, उसके अंदर में जो भी टर्मोइल जो चल रहा है उसको निकल रहा है, because he knows that maybe he is having a few days on this earth. But if you looked, you could see that he was holding his own hand in sympathy. अगर तुम ठीक से देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि ये आदमी अपना खुद का जो हाथ है, वो खुद ही, वो एक हाथ के ऊपर और एक हाथ वो पकड़ के रखे हैं, listening to every single word and he was telling himself everything. और वो जो बोल रहे हैं, जो मार कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो खुद का सब कुछ वो खुद ही सुन रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो वन, वहां पे कोई नहीं है who will pay heed to his feelings, who will pay importance to his feelings. नहीं, वो बिल्कुल अकेला है. इसीलिए वो अपने आप से बात कर रहा है. और ये the poet is, he wants to say that it's a poignant, a very stark reality of life. We are left alone when we are in danger. एंड ये जो पेशेंट्स लोग हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस. बट दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल. हमें हॉस्पिटल क्यों पसंद है? इसीलिए पसंद है क्योंकि भाई हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपने जो एक्सप्रेशंस है, जो फीलिंग्स है, उसको तुम निकाल सकते हो. कोई तुमको कुछ नहीं पूछेगा. लेकिन अगर वही फीलिंग्स, वही एक्सप्रेशंस हम बाहर निकालेंगे, बाहर करेंगे, तो शायद लोग ये सोचेंगे कि इस आदमी के साथ क्या हुआ है. ओके, जिंदगी भी ऐसे ही है. तो एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ. ईच मोमेंट इज अ ब्लेसिंग. क्योंकि हम सबको पता है कि अगर ऐसा, ये जिंदगी जो है ना, ये इज जस्ट लाइक हीज इज हुज भाई. जिसका जिसका उसका उसका, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा. वो एक गाना है ना किशोर कुमार का, शायद जो शीला फिल्म से है, वो जहां पे देवानंद जी
और हेमा मालिनी जी, हाँ आई मीन हाँ देवानंद साहब एंड हेमा मालिनी जी, वो गाना का लाइन कुछ ऐसा है कि कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई. Yes, this is the ultimatum of life. So enjoy yourself. Okay, पता नहीं what future has in store for us. Maybe we don't know what will happen the next day. So जी लो अपना जिंदगी, but at the same time पढ़ाई भी ठीक से करना है. जीना का मतलब ये नहीं है कि हम अभी नाचना स्टार्ट कर देंगे. ओके, नाचो, कोई बात नहीं. अगर नाचने से कुछ सुकून मिले तो नाचो, गाओ, जो मन चाहे करो, पढ़ाई भी करना है. Okay, so this is our poem Why I Like the Hospital by Tony Hogland. If you like the explanation, do subscribe the channel. Like, comment and share. Ta-ta.